लिसन टू द ऑडियो, जिन्होंने सुना है। प्रियंका, Japnoor, Srishti, Manraj, very good. So did you understand something? Did you understand it? Okay, the students who have listened to the audio, please show me a thumb if you have understood something. Okay, Japnoor has understood. I'm not just asking you कि आपने सुना है, I'm asking you कि समझ भी आया थोड़ा सा. Okay, let us start then because this chapter is a bit tricky. थोड़ा सा आपके लिए tough है, but अगर आप अच्छे से समझेंगे, then it is going to be very easy for you all, right? Okay, so chapter number 4, we have to do the verb and its kinds. Now, what is a verb? First of all, हमें पहले recall करना है quickly what is a verb. So as you can see on the screen, please be attentive, बेटे. I am repeating again. This topic is really important क्योंकि ये आपका कंटिन्यू होता ही रहेगा आगे, और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो it would be difficult for you. ठीक है? Because फिफ्थ में ऑब्वियसली इसका स्टैंडर्ड और इम्प्रूव हो जाएगा, एंड ये थोड़ा सा समझने वाला है, बहुत सीरियसली समझने वाला टॉपिक है ये. ओके, now what the verbs are? Words that tell us what people or things are doing are called verbs. ठीक है, कोई पर्सन या कोई चीज कोई क्या एक्शन किया जा रहा है किसी से, that is called verbs. So action words are verbs, but we have also done कि helping verbs को भी हम बोलते हैं. Can you tell me what are the helping verbs? Can you write a few helping verbs in the chat box? Beta, abhi book, you don't need to open the book right now. Just keep it with you, Manoble. Keep it closed and listen to me, beta. ठीक है? बुक तब खोलनी है जब I'll tell you. All right? Okay. Is, am, are. All right. Was, were, has, have, had. Okay. So these are all the helping verbs. Right. Okay. Stop writing, bete. Stop writing. Let us move further. अब आगे हमने क्या करना है? Today we are going to do the kinds of verb. ठीक है? So before that, let us recall what a sentence is made up of. आपने फर्स्ट चैप्टर किया था सेंटेंस, उसमें हमने स्ट्रक्चर किया था. स्ट्रक्चर मीन्स कि सेंटेंस में क्या क्या होता है. वी हैव अ सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो सेंटेंस में कोई एक्शन कर रहा है. ठीक है, सो आई एम डांसिंग, यहाँ पे आई एम परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ डांसिंग, मैं डांस कर रही हूँ, सो आई एम द सब्जेक्ट हियर, राइट. सो नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस में वर्ब. प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड बेटे एंड लिसन वेरी केयरफुली. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक आपको तभी समझ आएगा जब आप ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज टोटली न्यू फॉर यू. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले किया हुआ है. So then after the subject we have a verb. Verb क्या होता है? It can be a helping verb or it can be an action word, right? उसके बाद हमारा आता है object. Now ये जो concept of object है ये थोड़ा सा आपके लिए new है, and this is what we are going to learn in this chapter. Niban, please better sit straight, stop dancing on a chair. Okay, now let us move further. So look at the first sentence on the screen. The first sentence that we have on the screen is the boy flew kites, right? Okay. So यहाँ पे what is the subject here? कौन fly कर रहा है kites? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? Boy के बारे में, right? So boy is the subject here. Then what is the boy doing? Action word कौन सा है यहाँ? Verb क्या है हमारा? Verb is flew. और वो क्या fly कर रहा है? The boy flew what? He flew what? Write down the answer. Yes, has, have, had, was, were, all are the helping verbs. Yes, he flew kites. So ये जो kites word है, ये हमें किस चीज का आंसर दे रहा है? This is giving us. Now stop writing and listen to me. अब ये जो kites word है, ये हमें किस चीज का आंसर दे रहा है सेंटेंस में? What का. The boy flew what? उसका आंसर है the boy flew kites. Okay. Now look at the second sentence. The second sentence is she wrote a letter. She wrote a letter. So what is the subject here? Again, the subject here is कौन लिख रहा है, कौन एक्शन कर रहा है? She. तो यहाँ पे she हमारा subject है. Then what is the verb here? Verb यहाँ पे है wrote. Write का second form again. All right. And now ask yourself a question. अपने आप से question put कीजिए. What did she write? She wrote what? क्या आंसर आ रहा है what का? Yes. She wrote what? She wrote a letter. Yes. So what का आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पे? A letter. Okay. Now on the screen you can see the next sentence. The girl met her parents.
ठीक है, व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर, सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, द गर्ल, राइट। क्या एक्शन वर्ड है यहाँ या क्या वर्ब है यहाँ पे हमारा, मेट। मेट क्या है, मीट का सेकंड फॉर्म है। नाउ अगेन आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, फिर से अपने आप से क्वेश्चन पुट करो, द गर्ल मेट व्हाट आएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा इसका, अगर हमने इसका क्वेश्चन बनाना है, क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स। द गर्ल मेट व्हाट आएगा यहाँ पे, यस बेटा, आई वांट यू टू टेल मी द क्वेश्चन वर्ड, प्लीज her node, please keep yourself muted. Yes, the girl, no I'm not told you to write the verb, मैं आपसे पूछ रही हूँ यहाँ पे एक्शन वर्ड कौन सा आएगा, एक्शन सॉरी क्वेश्चन वर्ड कौन सा आएगा। the girl met her parents, the girl met, क्या क्वेश्चन वर्ड यूज करूंगी मैं यहाँ, what आएगा या कोई और, yes very good, Priyanka has given the answer whom, very good, whom means किसको, so the girl met whom, girl किसको मिली, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड व्हाट नहीं बना है, यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या बना है, whom, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, द गर्ल मेट whom, किसको मिली, एंड द आंसर इज हर पेरेंट्स। ओके, नाउ यू कैन सी, अब इन तीनों सेंटेंसेस में एक चीज आप देखेंगे कि जो हमारे वर्ब्स हैं, वर्ब्स कौन कौन से हैं, फ्लू, रोट और मेट। अगर हम इनके आगे काइट वर्ड ना लगाएं, और लेटर वर्ड ना लगाएं, हर पेरेंट्स वर्ड ना लगाएं, तो क्या इसका मीनिंग कंप्लीट बन रहा है, नो। सो अभी आप कैसे करके देख सकते हैं, आप स्क्रीन पे जहाँ लिखा है ना द बॉय फ्लू काइट्स, वहां पे वर्ब के बाद, वर्ब क्या है फ्लू, उसके बाद काइट्स वर्ड को हाइड कीजिए, फिंगर से सारे अपने स्क्रीन पे काइट्स वर्ड को हाइड करेंगे, काइट्स वर्ड को हाइड कीजिए और अब सेंटेंस पढ़िए, द बॉय फ्लू, क्या सेंटेंस बना, अगर हम काइट्स को छुपा देते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बना, द बॉय फ्लू, यानी कि बॉय ने उड़ाया। तो क्या इसका मीनिंग कंप्लीट है, यस, नॉड योर हेड एंड टेल मी, नो, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। बॉय ने उड़ाया, क्या उड़ाया, क्यों उड़ाया, कब उड़ाया, हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है फ्लू, वो हमें खुद से पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं पा रहा है। उसके इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने वहां पे क्या वर्ड ऐड कर दिया, काइट्स। अब काइट्स पे से हैंड हटाएंगे और दोबारा सेंटेंस को पढ़ेंगे, द बॉय फ्लू काइट्स, तो बॉय ने काइट्स उड़ाई। ओके, अब इसका मीनिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। सो जब भी आपने काइंड्स ऑफ वर्ब करने हैं तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो वर्ब सबसे पहला काम क्या करना है, अपने वर्ब ढूंढना है सेंटेंस में। जब वर्ब को ढूंढ लेंगे तो उसके वर्ब के पीछे वाला पोर्शन को हाइड करके देखना है, ठीक है। अब देखिए अगेन नेक्स्ट सेंटेंस पे फिर से कीजिए हाइड, शी रोट अ लेटर, रोट इज द वर्ब हियर, वर्ब ढूंढ लिया सबसे पहले रोट, उसके पीछे वाले पार्ट को हाइड कर देंगे, अ लेटर को हाइड कीजिए और अब पढ़िए क्या बना हमारा सेंटेंस, शी रोट, उसने लिखा। क्या ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, शी रोट व्हाट, क्या लिखा, किसको लिखा, कुछ भी नहीं हमें समझ आ रहा पूरा मीनिंग, ठीक है। सो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने वहां पे एक क्या ऐड किया है, एक नाउन ऐड किया है, जिसका क्या है वो नाउन, अ लेटर, ठीक है। नाउ रिमूव योर हैंड्स फ्रॉम देयर, नाउ रीड इट अगेन, शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखी। तो जब हमने यहाँ पे लेटर वर्ड लगा दिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट। सो ये जो वर्ड्स हैं काइट्स, अ लेटर और हर पेरेंट्स, ये तीनों सेंटेंसेस में किसका आंसर दे रहे हैं, या तो व्हाट का आंसर दे रहे हैं या फिर किसका आंसर दे रहे हैं, whom का आंसर दे रहे हैं, राइट। ओके, इसके आगे चलते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। एक्सक्यूज मी मैम, या यस बेटे, मैम जैसे कि आपने बोला था, अब आपने अभी बोला है कि उसके साथ हमने व्हाट यूज किया था और होम यूज किया था, इसके साथ कोई और भी WH वर्ड क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बन सकता है? नहीं बन सकता, यही मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। अब आगे आगे ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट डूइंग फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब। हमारे 3 काइंड्स ऑफ वर्ब होते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब, सारे बोलेंगे साथ में विदाउट अ साउंड, ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड इज intransitive verb एंड थर्ड इज इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। बट आज हमने सिर्फ क्या करना है, एक ही करना है ट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज ये थोड़ा सा अभी नया टॉपिक है, हम धीरे धीरे चलेंगे आगे। नाउ लुक एट द स्क्रीन, ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब नाम से पता चल रहा है आपको, होता तो वो वर्ब ही है, लेकिन कौन सा वर्ब होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है।
A transitive verb requires an object. ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। या तो वो कोई उसे या तो कोई नाउन चाहिए या फिर कोई प्रोनाउन चाहिए। किस लिए? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग ताकि कंप्लीट हो। इसीलिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? किसी वर्ड की जरूरत पड़ती है, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है, और उस वर्ड को हम क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। दिस चाइल्ड विद द नेम सब्बी भट्टी, बेटा आर यू स्टिल इन द बेड? मींस आर यू अवेक? सिट स्ट्रेट। ओके, नाउ हम इससे पहले वाली स्लाइड पे एक बार दोबारा चलते हैं। Look at this slide again. The boy flew kites. She wrote a letter. The girl met her parents. यहाँ पे जो तीनों ग्रीन कलर के लेटर्स में वर्ड्स हैं, ये तीनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ना ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे फ्लू जो है वर्ड, वो वर्ब है, वर्ब तो है ना। क्या वो, अगर हम उसके पीछे वाले पार्ट को छुपा देते हैं, क्या वो अपना मीनिंग कंप्लीट दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा ना हमें पूरा मीनिंग। हमें अगर हम काइट्स को छुपा दें और लेटर को छुपा दें तो हमें मीनिंग नहीं पूरा पता चल रहा। सो ये वाले वर्ब्स जो हैं फ्लू, रोट और मेट, तीनों क्या हो गए? ट्रांजिटिव वर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि इनका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब जब इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमने वहां पे कोई ना कोई वर्ड ऐड किया है। वर्ड ऐड किया, जैसे काइट्स ऐड किया, और लेटर ऐड किया, हर पेरेंट्स ऐड किया। ठीक है। सो ये वाले जो वर्ड्स हैं जो उसका मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किस चीज का आंसर देते हैं हमें? सॉरी, I think I lost the connection. So ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये हमें आंसर देते हैं किस चीज का? व्हाट का या फिर whom का। जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ किस चीज का आंसर देते हैं? दो ही वर्ड्स का आंसर देंगे, या तो व्हाट का आंसर देंगे या फिर वो whom का आंसर देंगे। राइट? Ma'am, please repeat the meaning of object. Yes, I'm repeating, बेटा, just wait a minute. I was waiting for the phone to move. Okay, so object क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है। और वो नाउन और प्रोनाउन किस चीज का आंसर देता है हमें? या व्हाट का आंसर देगा या फिर whom का आंसर देगा। ठीक है। अभी आप जब और एग्जांपल्स करेंगे ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। राइट? ओके, हम आगे मूव करते हैं हम जल्दी से। Okay, so now we'll look at the screen again. एक बार मैं quickly जल्दी से पढ़ूंगी transitive verb क्या होते हैं। A transitive verb requires an object. Transitive verb को किसकी जरूरत पड़ी? Object की जरूरत पड़ी। और वो object क्या होगा? Noun या फिर कोई pronoun होगा। Right? और वो noun और pronoun किस question का आंसर देता है? What का या फिर whom का। Is that much clear to you? इतना clear है सबको? I can't see your expressions. Is this much clear? इतना clear हो गया सबको बेटा? Okay. Now let us see the example that is given on the screen. The example is the students write composition. So अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है सेंटेंस में? फाइंड आउट, हमेशा यही करना है जब भी वर्ब्स की काइंड हमने फाइंड आउट करनी है, सबसे पहला काम क्या करना है? वर्ब ढूंढना है। So what is the verb in this sentence? जल्दी से, उसके आगे नहीं अभी पढ़ना आपने। Yes, what is the verb here? Write. Very good. सो वर्ब यहाँ पे क्या है? राइट। अब इसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था क्या करना है? इसके बाद हमने वर्ब की काइंड ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्ब ढूंढ लिया और वर्ब के पीछे वाले वर्ड को क्या करते हैं ना, हमने पहले अपने हैंड से हाइड कर देना। उसे हाइड कीजिए। द स्टूडेंट्स राइट कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन को हाइड करो। अब पढ़ो इस सेंटेंस को। क्या बचा हमारे पास? द स्टूडेंट्स राइट, स्टूडेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इज इट कंप्लीट? नो, हमें यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, हमें इसे कंप्लीट करना है। इसीलिए राइट हमारा कौन सा वर्ब है? क्योंकि ये इनकम्प्लीट हो गया ना, बिना ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब द स्टूडेंट्स राइट, क्या क्वेश्चन पूछेंगे हम? द स्टूडेंट्स राइट, क्या क्वेश्चन वर्ड लिखो जल्दी से। क्वेश्चन वर्ड, यस, वेरी गुड। प्रियंका हैज रिटन द आंसर व्हाट।
सो हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, द स्टूडेंट्स राइट व्हाट। सो व्हाट का आंसर हमें क्या मिल रहा है? अब देखो जरा व्हाट का आंसर क्या है हमारा, व्हाट इज द आंसर ऑफ व्हाट हेयर? द स्टूडेंट्स राइट व्हाट। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ स्टूडेंट्स राइट व्हाट, तो क्या आंसर लिखेंगे आप? द स्टूडेंट्स राइट, क्या लिख रहे हैं बच्चे, क्या लिख रहे हैं वो स्टूडेंट्स? बेटा अब इसको छोड़ दो, आगे बताओ। द स्टूडेंट्स राइट कॉम्पोजिशन, वेरी गुड। सो द आंसर विल बी द स्टूडेंट्स राइट कॉम्पोजिशन। सो यहाँ पे राइट हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, और कॉम्पोजिशन हमारा क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, क्योंकि कॉम्पोजिशन जो होता है वो नाउन है, ठीक है। ओके, नाउ इसके आगे पढ़ेंगे, व्हाट डू द स्टूडेंट्स राइट? कॉम्पोजिशंस। हो गया क्लियर इतना आपको? इज इट क्लियर दिस मच? मैम जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं मैम, वो उसकी जो ऊपर वाला है मैम, वो फिर से समझा दो मैम। बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। बेटा ऐसे तो फिर आई हैव टू रिपीट एंड रिपीट फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, ट्रांजिटिव वर्ब मैंने पहले आपको ऐसे 2 बार समझा दिया है। ट्रांजिटिव वर्ब, इसके बाद आप अपना ऑडियो सुनेंगे अच्छे से, सेम जो मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ वही मैंने उसमें ऑडियो में सारा किया है, ठीक है। सो आपने इसका ऑडियो एटलीस्ट 5 टाइम सुनना है, तभी आपको क्लियर होगा। ओके, सो ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है, फिर से ध्यान से सुनेंगे, जो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं दे पाता है, और उसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट होता है क्या चीज है? ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, और कुछ नहीं होगा वो, एडवर्ब एडजेक्टिव कुछ नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन होता है या फिर कोई प्रोनाउन होता है, और वो किस क्वेश्चन का आंसर देता है हमें? व्हाट या फिर whom का आंसर देता है, ठीक है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, यस मनराज। मैम जो ट्रांसलेटिव वर्ब है मैम, उसमें मैम ऑब्जेक्ट मैम हमेशा नाउन प्रोनाउन मैम हमेशा पीछे लगता ही होते हैं। यस वो वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है, वर्ब के बाद। ओके मैम। ओके, नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, पीटर लव्स मैरी। पीटर लव्स मैरी। सो अब यहाँ पे जल्दी से क्या है, अपने आप करना है, अब लिखना नहीं है कुछ। अब मुझे जल्दी से अपना फटाफट इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना वर्ब ढूंढेंगे। पीटर लव्स मैरी, वर्ब ढूंढिए। रमन कुमार बेटा आप ये गुरसुमर आप बैठे कैसे हुए हैं? आई कैन सी ऑन योर लेग्स। वेयर इज योर कैमरा, वेयर इज योर फेस? गुरसुमर बेटे वेयर इज योर फेस? हाँ जी, प्लीज बी केयरफुल। ओके, लव्स यहाँ पे हमारा क्या है? वर्ब है, वेरी गुड। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? वर्ब मिल गया, अब इसके बाद हमने क्या करना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब ढूंढना, सबसे पहला स्टेप है हमारा वर्ब ढूंढना। वर्ब ढूंढने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? वर्ब के पीछे वाले वर्ड को हाइड करना है, हाइड कीजिए। पीटर लव्स, पीटर प्यार करता है, किसको प्यार करता है? किसको प्यार करता है? कंप्लीट है मीनिंग? नहीं है ना कंप्लीट। So what's making you smile so much? सतनाम चौहान के नेम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया हो, बेटा इतना स्माइल करने वाला क्या हो गया? सो पीटर लव्स, इनकम्प्लीट हो गया मीनिंग, है ना। सो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया? वर्ड मैरी। सो क्या क्वेश्चन वर्ड बनेगा यहाँ? पीटर लव्स whom, पीटर किसको प्यार करता है? whom का आंसर आ रहा है, एंड द आंसर इज मैरी, राइट। सो यहाँ पे अगेन हमारा वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि वो अपने आप में मीनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा। उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमने वहां पे क्या लगाया है? एक ऑब्जेक्ट लगाया है। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैरी है, एंड दैट इज अ नाउन। लेकिन यहाँ वो व्हाट का आंसर नहीं दे रहा है, वहां यहाँ पे वो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? whom का, ठीक है। सो सिर्फ व्हाट या whom, दो ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैम जैसे कि आपने बोला है कि जैसे अब मैरी था और पहले पेरेंट्स था, हमने उसके साथ होम लगाया था, तो जब भी कोई मैन पर्सन होगा तब हम उसके साथ होम लगाएंगे। होम ही लगाते हैं। किसको? होम का मतलब होता है किसको, ठीक है। आई मेट माई फ्रेंड, मैं किसको मिली? मेरी फ्रेंड को। आई स्लैप्ड हिम, मैंने किसको स्लैप किया? हिम, ठीक है। सो ये किसको का आंसर देता है? whom। नाउ लेट अस मूव फर्दर, अगेन आई हैव अनदर डेफिनेशन हियर। यहाँ पे एक और डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स that have an object to receive the action। वहां पे मतलब कि इन शॉर्ट आप इसको मत ध्यान से पढ़ो, बस मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर एक्शन का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ आई स्लैप्ड हिम, तो मैंने स्लैप किया, मेरे स्लैप मारने का जो वर्ब है मेरा स्लैपिंग वाला, उसका इफेक्ट, थप्पड़ पड़ा किसको?
किसको स्लैप किया मैंने, उसका थप्पड़ का इफेक्ट किस पे पड़ा, जिसको लगा होगा उसी को ना, तो वो कौन है, हिम। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो होता है वो एक्शन का इफेक्ट जाता है। तो इसको अभी आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ पाएंगे, इसको छोड़ दीजिए। नाउ लुक एट सम लुक एट सम एग्जांपल्स हियर। सो फॉर द फर्स्ट सेंटेंस हियर इज आई बेक सम कुकीज। सो नाउ क्विकली, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है एक्शन वर्ड को, उसके आगे वाले नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्शन वर्ड मिल गया हमें बेक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करना है हमने, बेक के बाद वाले वर्ड्स को हाइड कीजिए, जल्दी से अपनी फिंगर साइड कीजिए और फिर रीड कीजिए आई बेक, मैं बेक करती हूँ। सो दिस इज अगेन गिविंग एन इनकम्प्लीट सा मीनिंग हमें मिल रहा है। आई बेक व्हाट, आई बेक सम कुकीज। यहाँ सम तो चलो एडजेक्टिव है, लेकिन एग्जैक्ट, एक मिनट शीशा वेट करो बेटे, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट वर्ड आंसर क्या है हमारा, कुकीज। आई बेक सम कुकीज, सम इज द एडजेक्टिव हियर। ठीक है, सो कुकीज इज द आंसर। आई बेक व्हाट, आई बेक कुकीज। सो व्हाट का आंसर दे रहा है। नेक्स्ट, आई राइड द बाइसिकल। अगेन आई राइड, वर्ब हमारा क्या है, राइड। हाइड कर दीजिए उसके बाद, मैं राइड करती हूँ, क्या राइड करती हूँ, नहीं पूरा बन रहा ना, राइड अपना मीनिंग पूरा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए उसको क्या जरूरत पड़ रही है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बाइसिकल है, वो जो कि क्या है, नाउन है। और ये किस चीज का आंसर दे रहा है, आई राइड व्हाट, आई राइड द bicycle. So what का आंसर दे रहा है, so here bicycle here is the object. Now last sentence, beta 1 minute, let me complete with this, then I'll take your query. So I move the chair. What is the verb here, move. क्या verb है यहाँ पे, move. मैं move करती हूँ, क्या move कर रही हूँ, no, meaning is not complete, तो इसका मतलब ये transitive है, right? Now what, I move what, what का आंसर आ रहा है, what का आंसर क्या आ रहा है, चेयर। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे द चेयर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर बेटा? यू कैन पुट योर थम्स अप और नॉड योर हेड एटलीस्ट मुझे लगे कि हमें पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ आ रहा है। या नाउ श्रीशा यू कैन आस्क, प्लीज डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन बेटे, जब मैं कुछ समझा रही हूँ तो 2 मिनट वेट क्या करो, लेट मी कंप्लीट माई सेंटेंस। हाँ जी बोलिए श्रीशा। मैम जो सा आपने पिछले स्लाइड में अभी आपने, मैम पिछले साइड में जो फर्स्ट वाला सेंटेंस था, शी बेक द कुकीज, मैम उसमें से हमने हाइड कौन कौन से करे थे? बेटा वहाँ वर्ब क्या था, पहले मुझे बताओ, वर्ब क्या था, शी बेक्ड कुकीज में वर्ब क्या है? मैम बेक। हाँ, तो मैंने आपको बोला हमेशा वर्ब के बाद वाला जो है ना वर्ड्स, उनको हाइड करना है, हमेशा यही रूल। वर्ब के बाद वाले सारे वर्ड्स को हम हाइड कर देंगे। हाँ, उसके बाद वाले वर्ब के बाद वाले जितना भी आपके वर्ड्स हैं, 1 वर्ड है 2 वर्ड है, उसको हाइड करके फिर करना आपने। ठीक है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड whom? व्हाट मतलब क्या, whom मतलब कौन, किसको, आई मेट हिम, आई मेट whom, मैं किसको मिली। ठीक है, ये तो बेटा बेसिक वर्ड्स है, मैं एक बार करवा भी चुकी हूँ आपका ये, आई थिंक क्वेश्चन वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी डन वंस। अदरवाइज इनको आप अच्छे से समझ लीजिए कि व्हाट क्या होता है, whom क्या होता है, रिमेंबर देम ऑलवेज। ये आपका सिर्फ इसी में यूज नहीं होने वाला, ये बहुत जगह, हर जगह यूज होती हैं चीजें। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, चार्जर। Okay, so now look at the sentences given on the screen. Don't look at the, इसकी वो नहीं पढ़ेंगे आप definition, this is a bit difficult and don't read this, हम सिर्फ examples पढ़ेंगे। She played the piano. So what is the verb here? Played. ठीक है, उसके पीछे वाले सेंटेंस को हाइड कर दीजिए और आप पढ़िए she played, उसने प्ले किया। Is it complete? No, it is not complete. So इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने वहां पे क्या ऐड किया है, ऑब्जेक्ट ऐड किया है, द पियानो, और वो क्या है, एक नाउन है। ठीक है, शी प्लेड व्हाट, व्हाट का आंसर आ रहा है, शी प्लेड द पियानो, राइट। नेक्स्ट, लियाम विल रिलीज 5 सील्स। अब ये इसको जरा आप ध्यान से सुनेंगे। नाउ व्हाट इज द वर्ब हियर, क्विकली जल्दी से लिख के सेकंड सेंटेंस का वर्ब मुझे लिख के बताइए। हु सेड आई हैव अ डाउट बेटे, जस्ट आई विल टेक द डाउट्स। Release or will release, yes, now this is what I wanted. Please up, stop writing and listen to me. Stop writing bete, stop writing बच्चे, listen to me. फिर ऐसे कीजिए, आप लिखते रहिए, I'll stop teaching. गुरसुमन बेटा, you sit straight, sit straight. Okay, will release को हमने यहाँ पे
वर्ब में कंसीडर करना है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब वर्ब फाइंड आउट करना है ना, तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब को साथ में इंक्लूड करना है। ये आप पहले टेंसेस में भी लास्ट ईयर आपने किया था ना। अगर हम आप फ्यूचर टेंस करते थे तो आपको कहा जाता था कि विल शेल को साथ में लिखना है ना। तो रिम्पी गुलाटी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो सिमिलरली यहाँ पे भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर साथ आ रहा है उसको भी साथ में वर्ब में कंसीडर करना है। सो यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो रिलीज अकेला नहीं होगा, अवर वर्ब विल बी विल रिलीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो लियाम विल रिलीज होता है छोड़ देना। सो व्हाट विल ही रिलीज, क्या रिलीज करेगा वो? ही विल रिलीज 5 seals, 5 seals को वो रिलीज कर देगा। सो हियर 5 seals इज द ऑब्जेक्ट, राइट। 5 एक्चुअली यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगर आप seals पे लिखते हैं इवन देन इट इज फाइन। क्लियर है ये? Is it clear, bete? Okay, let us move further. Now I have another example for you on the screen. Jack is reading a book. Now who is the subject? What is the subject here? Jack. कौन read कर रहा है? Jack read कर रहा है. So is the subject is reading a book. So what is the verb here? Is reading. तो हमने दोनों को. Excuse me, ma'am. Yes. मिसबा प्लीज। मैम 5 seals का मीनिंग क्या होता है? Seals एनिमल होते हैं, जो सी एनिमल्स seals होती हैं, 5 is the number. Okay. Okay. So is reading दोनों वर्ड्स को ही हम वर्ब्स में लेंगे क्योंकि इस भी हेल्पिंग वर्ब ही है। So Jack is reading what का आंसर क्या आ रहा है? A book. So our object is a book here. Okay. Now next one, please जल्दी से करेंगे हम। I think our time is going to be over. Transitive verbs need a direct object. अभी आप डायरेक्ट वर्ड को स्किप कर दीजिए, ये आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी हम सिर्फ इतना ही करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं उनको हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक ऑब्जेक्ट की। रजनीश वर्मा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, राइट। Now look at the example here. She wrote a letter. We have already discussed the same sentence, I think, earlier also. So here she is the subject. Verb यहाँ पे हमारा wrote है, and she wrote what? She wrote a letter. Fine. So we have already discussed, so we'll not go into the detail. Now we have a very small activity like questions. You will quickly write in the chat box. Find out the transitive verb and the object. Okay. So the first sentence is the girls ate ice cream. सबसे पहले क्या करना है हमने सेंटेंस में? इसी तरह के अगर आपको क्वेश्चन आते हैं क्या करना है? सबसे पहले हमने वर्ब ढूंढना है। सो व्हाट इज द वर्ब हियर? एट, ठीक है ना। अब उसके पीछे नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? उसके पीछे वाले वर्ड को हाइड कर देना है। हाइड कीजिए। द गर्ल्स एट, गर्ल्स ने खाया। क्या ये कंप्लीट है? नो, एट मतलब कंप्लीट नहीं दे रहा है। सो हमारा क्वेश्चन बनता है द गर्ल्स एट व्हाट, और हमारा आंसर क्या आएगा? आइसक्रीम। सो यहाँ पे हमारा एट क्या हो गया? एट हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हुआ भी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और आइसक्रीम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, नाउ प्लीज स्टॉप टाइपिंग एंड लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से सुनेंगे प्लीज बेटा। स्टॉप टाइपिंग एंड लुक हियर ऑन द स्क्रीन। प्लीज स्टॉप टाइपिंग बेटे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। प्लीज स्टॉप इट। ओके, नाउ आई विल नॉट वेट फॉर यू। आप करते रहिए टाइप, आपको समझ नहीं आएगा। Now look at the second sentence. The second sentence is the girls are dancing. Now tell me what is the verb here? The girls are dancing. What is the verb here? Are dancing. Nibandh has written dancing. Some are writing are, and some are writing dancing. Okay, are dancing, are dancing. Ma'am, will is a helping verb. हाँ जी, आप पहले भी पूछा था आई थिंक आपने मुझसे, श्रीषा। Okay, so Parneet has given the correct answer. The verb here. Now listen, stop typing and listen to what I'm going to tell. This is really important. अच्छे से समझेंगे आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी आ जाएगा समझ, अभी आ जाएगा अगर आप सुनेंगे तो, ठीक है। अदरवाइज हमने इंट्रांजिटिव नेक्स्ट क्लास में करना है। The girls are dancing. यहाँ पे हमारा verb है are dancing. तो verb के साथ ही हमारा सेंटेंस खत्म हो गया। यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं। चलिए उसको छोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं। अब इस सेंटेंस को रीड कीजिए। The girls are dancing. यहाँ पे इसका मीनिंग कंप्लीट है। गर्ल्स डांस कर रही हैं, मीनिंग कंप्लीट है। यस, एक्सप्रेस योरसेल्फ विद सम एक्शन। इज द मीनिंग कंप्लीट?
द गर्ल्स आर डांसिंग, बिल्कुल कंप्लीट है, गर्ल्स डांस कर रही हैं, पूरा मीनिंग कंप्लीट है। सो इसका मतलब यहाँ जो वर्ब है, वर्ब क्या है हमारा, आर डांसिंग। क्या इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? है इसको जरूरत? नहीं है, क्योंकि ये तो अपना मीनिंग पहले से कंप्लीट कर रहा है। सो ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहां पे हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और इन सेंटेंसेस को हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, जो हम कल करेंगे। अदरवाइज आई जस्ट टोल्ड यू, ये इसलिए मैंने लिखा था ताकि आपको डिफरेंस समझ आए कि एक पहले वाले सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही थी मीनिंग क्लियर करने के लिए, लेकिन सेकंड वाले में कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। ओके रेखा मैम, कैन आई टेक 2 minutes more? I know you're waiting. Yes, ma'am. Okay, just 2 sentences more. Thank you so much. Okay, beta. So look at the next sentence. The poor beggar lost his leg. Now, what is the verb here? Lost his leg. What is the verb here? Lost his leg. Lost. Very good. Lost is the second form of lose. ठीक है? So उस यहाँ पे हमारा verb हो गया lost. अब next फिर कीजिए वही वाला. Next step क्या है हमारा? वर्ब के बाद वाले पोर्शन को हाइड कीजिए और अब पढ़िए। अब हमारा सेंटेंस बच गया, द पुअर बेगर लॉस्ट। पुअर बेगर ने अपना लूज कर दिया। क्या लूज कर दिया? क्या ये मीनिंग कंप्लीट है? नहीं, नहीं कंप्लीट ना, हमें पूरा तो समझ ही नहीं आ रहा, उसका क्या गुम हो गया, हमें पूरा ही नहीं समझ आ रहा। सो उसका आंसर है, हमारा क्वेश्चन क्या बना, द पुअर बेगर लॉस्ट व्हाट? क्या गुम हो गया उसका, क्या उससे छूट गया? सो उसका आंसर है हिज लेग। तो हिज लेग यहाँ पे किसका क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और वो व्हाट का आंसर भी दे रहा है, राइट। सो इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस्ट वर्ड है वो हमारा कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। नाउ लास्ट सेंटेंस वी हैव ऑन द स्क्रीन इज द पुअर बेगर इज बेगिंग। व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? द पुअर बेगर इज बेगिंग। Tanishka has written begging. Okay, begging is begging. Japnoor has written is begging. Yajat has written is begging, and the answer is begging. अभी आपको समझाया था कि helping verbs को साथ में include करना है. So is begging here is the verb. यहाँ पूरा verb जो है हमारा is begging है. अब इसके बाद तो हमारे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है इसके बाद? कुछ भी नहीं, हमारा सेंटेंस यही फिनिश हो गया। अब इसको हिंदी में बोल के देखते हैं, द पुअर बेगर इज बेगिंग। जो पुअर गरीब जो भिखारी है वो भीख मांग रहा है। सो इज इट कंप्लीट? इज द मीनिंग कंप्लीट? यस, इट इज कंप्लीट। यानी कि इज बेगिंग जो वर्ब है वो अपना मीनिंग पूरा कंप्लीट हमें बता रहा है, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये कौन सा वाला वर्ब हुआ, जरा आप क्विकली लिख के बताएंगे, इज बेगिंग कौन सा वर्ब हुआ? यस, इज बेगिंग कौन सा वर्ब है? चैट बॉक्स में लिखेंगे जल्दी से। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस मैम जो ऑब्जेक्ट होता है मैम वो हमेशा वर्ब के आगे ही आता है, मतलब पीछे। हाँ जी, वर्ब के बाद ही आता है। ओके, वेरी गुड। सो आई हैव गॉट सो मेनी आंसर। यस, इज बेगिंग हियर इज द इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव बेसिकली ट्रांजिटिव का ऑपोजिट होता है, उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, ट्रांजिटिव का इंट्रांजिटिव का कंप्लीट होता है। ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बेसिक यही डिफरेंस होता है, बट इवन देन वी आर गोइंग टू कवर दिस इंट्रांजिटिव वर्ब इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब आपने आज क्या करना है, अच्छे से ऑडियो को सुनना है 2 times 3 times 4 times, राइट। और आप इसमें से फिर उस बाद एक्सरसाइज नंबर 4 आप लोगों ने आज करनी है। इज दैट क्लियर? आई होप अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, सो रेखा मैम विल टेक ओवर नाउ. And please listen it 2-3 times. Only then you will be able to understand. Rekha ma'am, thank you so much for giving me time. You can take now. Okay, ma'am. Good morning, students. बेटे अलसा Good morning. पार्ट 7 बेटे म्यूट योरसेल्फ। अलसा ਨੂੰ ਪਾਰਟ 7 ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ PT2 ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ PT2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PT1 ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਮ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿਓਗੇ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਸਕਰੀਨ।
एक्सक्यूज मी मैम, यस एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम बच्चे। जैसे कि आपने अभी बोला है कि हमें पीटी वन के ग्रामर के सारे सब जो लिंक बदलो हैं वो आएंगे, जो उसके चैप्टर्स हैं वो भी हमें पेपर में इंक्लूड होंगे पीटी टू के। बेटे ये मैम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਚਿਊਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 1 2 3। ਜੋ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਚਿਊਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚਿਊਰਨ, ਚਿਊਰਨ, ਚਿਊਰੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਚਿਊਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਿਊਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਿਊਰ ਤੇ ਜੋ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚਿਊਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿੰਗ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ। ਪੁਲਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਖ ਜਾਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਮਰਦ ਜਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ, ਔਰਤ ਜਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਿਊਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਚਿਊਰੀ। ਨੈਕਸਟ, ਬੱਦਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੱਦਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਦਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਦਲਣ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲੀ। ਬੱਦਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਦਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੱਦਲ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਦਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਬੱਦਲ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਬਦਲੀ। ਰਿਛ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਬੇਟੇ ਮਿਊਟ yourself। एक्सक्यूज मी मैम। Yes। मैम ये जरूर ਹੁੰਦਾ है कि स्त्रीलिंग ही छोटा होवे। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕੈਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਟੋਪੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਪਾ, ਟੋਪੀ। ਇੱਥੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। मैडम ਠੀਕ जी ਹੈ, जिवें रस्सा ਜਿਵੇਂ ते ਵੱਡੇ रस्सी। ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। मैडम जी जिवें रस्सा ते रस्सी। ਹਾਂਜੀ। ਰਿਛ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਰਿਛੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਛਨੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਰਿਛਣੀ। ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਅੱਧਕ, ਛੱਛਾ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਨਾਣਾ ਆਵੇਗਾ, ਨੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਰਿਛ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਛਣੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਿਛ, ਇਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਰਿਛਣੀ। ਨੈਕਸਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਜੋੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੁਣੋ ਤੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋਟਾ, ਸੋਟਣੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੋਟਾ, ਸੋਟੇ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਵਚਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਟਾ, ਸੋਟੀ। ਦੇਖੋ ਸੋਟਾ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿੰਗ।
ਸੋਟੀ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਟਾ ਸੋਟੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੁਲਿੰਗ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਪੰਡਤ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ। ਪੰਡਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। फर्स्ट ऑप्शन है पंडितन, जो कि गलत है। थर्ड ऑप्शन है पंडितन, ये भी गलत है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है पंडितानी, पप्पे टिप्पी डड्डा तत्ते कन्ना नाना बिहारी, नाना आवेगा बच्चे। पंडितानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। पंडित पुलिंग दा स्त्रीलिंग होवेगा पंडितानी। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ऑप्शन नंबर 2 प्रोहतानी, गलत। थर्ड ऑप्शन प्रोहतानी, ये भी गलत। जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोहतानी, पप्पे दे पैर छरारा होड़ा हाहा तत्ते कन्ना नाना बिहारी, प्रोहतानी। प्रोहत शब्द का स्त्रीलिंग है प्रोहतानी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट स्लाइड। गुआंढी शब्द का स्त्रीलिंग दसो। हाँ जी बेटे। बेटे इट्स विजिबल, चेक योर नेटवर्क। गुआंढी शब्द का स्त्रीलिंग दसो। गुआंढी मेल, ये एक पुलिंग शब्द है। गुआंढी का मतलब हुंदा है नेबर। जो मेल नेबर होवे उसनूं असीं कहांगे गुआंढी। गुआंढी शब्द का स्त्रीलिंग दसो। जिवें कि शाम कह रहा है कि राम मेरा गुआंढी है। गुआंढी मतलब नेबर, ते ये एक पुरख नूं असीं गुआंढी कहांगे। इसका स्त्रीलिंग दसो। गुआंढी गुआंढन, नन्ना नहीं आएगा। सैकेंड गुआंढ नूं असीं नेबरहुड कहांगे। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है गुआंढन। गुआंढी का स्त्रीलिंग होवेगा गुआंढन। गुआंढन असी इस्त्री वास्ते इस्तेमाल करांगे, ये स्त्रीलिंग है। गुआंढी पुलिंग, गुआंढन स्त्रीलिंग। गुआंढी शब्द का स्त्रीलिंग होवेगा गुआंढन। नैक्सट ਤੁਹਾਨੂੰ 3 जोड़े दिते गए हैं। इन्हां विचों शुद्ध पुलिंग स्त्रीलिंग जोड़ा चैट बॉक्स में उत्तर दिओ। शुद्ध पुलिंग स्त्रीलिंग जोड़ा तिना ऑप्शन विच चुनो ते मैनू चैट बॉक्स विच उत्तर दिओ। फर्स्ट ऑप्शन है जट, ते इसके ओपोजिट लिखा हुआ है जट ई। बच्चे इत्थे स्पैलिंग मिस्टेक है। जट का विरोधी स्त्रीलिंग हुंदा है जट्टी। जज्जे ते अद्धे के टैंके नूं बिहारी आएगा, पिछे ईड़ी नहीं आएगी। जट जट्टी ये एक अशुद्ध स्त्रीलिंग जोड़ा है। सैकंड ऑप्शन है बच्चा बच्चे। इत्थे लिंग नहीं बदलिया गया बल्कि वचन बदल दिता गया है। ये भी अशुद्ध कहावेगा। बच्चा तो बच्ची होवेगा, ना कि बच्चे। थर्ड ऑप्शन है शहरी। शहरी कौन हुंदा है? जो शहर विच रहिंदा है। शहरी दा स्त्रीलिंग होवेगा शहरन। बच्चे पिछे नन्ना आवेगा, नाना नहीं आएगा। शहरी एक पुलिंग है। जो व्यक्ति शहर विच रहिंदा है उसनूं असीं शहरी कहंदे हां, ते इसदा विरोधी स्त्रीलिंग होवेगा शहरन। शहरी शहरन। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट तेली शब्द का स्त्रीलिंग दसो। तेली कौन हुंदा है? जो व्यक्ति तेल का काम मैडम जी करता है।
हाँ जी बेटे, यस। जो ਵਿਅਕਤੀ ਤੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਲੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇਲੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਵੇਗੀ? मैम शहर पहला का की ऑप्शन जगह लिंग बदलो। शहर। बच्चे शहरी, शहरी पुलिंग शब्द है, इसका ठीक स्त्रीलिंग होवेगा शहरन। शहरी, जिवें कहें कि राम हुण शहर विच रहिंदा है, हुण राम शहरी है। ते राम दी पत्नी दा नाम लगा लो कुछ भी है, जिवें कि राणी, तां राणी शहरन कहावेगी क्योंकि वो भी शहर विच रह रही है। ठीक है। उसी तरह तेली, जो व्यक्ति तेल का काम करता है उसनों तेली कहांगे। जो उसकी इस्त्री है वो की कहावेगी? ऑप्शन नंबर 1 है तेल वाली, गलत। ऑप्शन नंबर 2 है तेलन, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है तेलन, तत्ते नु ला, लल्ला, णाणा, बच्चे लास्ट विच नाणा आवेगा। तेली, तेलन, थर्ड ऑप्शन सही है। तेली जो पुल्लिंग व्यक्ति जो तेल का काम करता है उसकी इस्त्री कहावेगी तेलन। नेक्स्ट शब्द दसो। ਗਿਆਨੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञानन, गलत। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान कौर, बच्चे ये स्त्रीलिंग नहीं, ये तो किसी औरत का नाम है। थर्ड ऑप्शन है ज्ञानन, गग्गे नु सियारी, एड़े कन्ना आ, नन्ना, हणाणा, लास्ट विच हणाणा आवेगा। ज्ञानी शब्द का स्त्रीलिंग होवेगा ਗਿਆਨਣ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ। ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਗਿਆਨਣ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਕਹਾਵੇਗਾ ਗਿਆਨਣ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਸੂਬੇਦਾਰ, ਬੱਚੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੂਬੇਦਾਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਸੂਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਬੱਚੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਹੈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਪਲੱਸ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜੋ ਹੈਡ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? सेकंड ऑप्शन है सूबेदारन, गलत। सूबेदारनी, गलत। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है सूबेदारनी, नन्ना, लास्ट विच नन्ने शब्द का अखर का इस्तेमाल किया गया है। सूबेदार शब्द का स्त्रीलिंग है सूबेदारनी। सस्से नु तुलैंकड़, बब्बे लावा बे, तद्दे कन्ना रारा नन्ना बिहारी, सूबेदारनी, जो कि सही स्त्रीलिंग है। सूबेदार पुल्लिंग, सूबेदारनी स्त्रीलिंग। नाउ नेक्स्ट, इन्हां शब्दां दा असीं इस्तेमाल लिंग बदलो विच कीता है। इन्हां तिन्नां शब्दां दा
ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਪੱਖਾ ਪੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਚੋਰਨੀ, ਸੋਟਾ ਸੋਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। मैम चोर कैसे लिखते हैं? ਵੇਟ, ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੱਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪੱਪੇ ਤੇ ਅਧਿਕ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਪੱਖੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਆ, ਰਾਰਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਚੌਰਨੀ। ਜਦਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰਨੀ। ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋੜਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਚੋਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਰਾਰਾ ਚੋਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੋਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਰਾਰਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਚੋਰਨੀ ਆਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕਨੌੜਾ ਟੈਂਕੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਇਹ ਸੋਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸਾਊਂਡ ਉਹ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਆਵੇਗਾ, ਸੱਸੇ ਹੋੜਾ ਸੋ ਟੈਂਕਾ ਬਿਹਾਰੀ ठी, ਸੋਟੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਟੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਪੱਖੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹਾਵੇਗਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ। ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਲਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਨ, ਗਲਤ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਣੀ, ਨਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਸੇ ਲਵਾਂ ਸੇ, ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਵਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਰਾਰਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਉਹ ਔਰਤ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਬੰਗਾਲੀ ਬੱਚੇ, ਬੰਗਾਲ, ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਂਸਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਬੰਗਾਲੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਗਾਲਣ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲਣ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਬੇ ਤੇ ਠਿੱਪੀ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਲੱਲਾ ਨਾਣਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਣਾ ਆਵੇਗਾ। ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਲਿੰਗ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਗਾਲਣ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੰਗਾਲਣ। ਨੈਕਸਟ, ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਬੂਤਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਬੂਤਰਨ, ਗਲਤ। ਕਬੂਤਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਬੂਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਪੁਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬੂਤਰੀ। ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ ਜੋੜਾ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ, ਭਿਖਾਰਣ, ਗਲਤ। थर्ड ऑप्शन है भिखारी भिखारनी, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन है भिखारी भिखारन, जो कि सही उत्तर है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। भिखारी जो भीख मंग के अपना गुजारा करता है उसनों असीं भिखारी कहांगे ते इसका विरोधी जो स्त्रीलिंग है भिखारन, वो औरत जो भीख मंग के अपना गुजारा करे भिखारन। भिखारी भिखारन शुद्ध पुलिंग स्त्रीलिंग जोड़ा है। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗ ਬਦਲੋ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੱਟ ਜੱਟੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੱਟ, ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਟੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀ, ਚਿਉਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਚਿਉਰੀ। ਬੱਦਲ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਬੱਦਲ, ਬੱਦਲੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੂਬੇਦਾਰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਹੈ। सेवादार जो सेवा करता है इसका स्त्रीलिंग है सेवादारनी। चोर जो चोरी करता है स्त्रीलिंग होवेगा चोरनी। पखा जो साइज विच वड्डा होवे पखा। पखी जो साइज विच छोटी होवे इसका स्त्रीलिंग पखी। बच्चा बच्ची। सोटा सोटी। रिछ जानवर है पुलिंग, इसका स्त्रीलिंग होवेगा रिछणी। पंडित पूजा पाठ करन वाला पंडित, इसका स्त्रीलिंग पंडिताणी। पुरोहित पुरोहिताणी, ये भी पूजा पाठ करते हैं। गुआंढी साडा नेबर, गुआंढी का स्त्रीलिंग गुआंढण। बंगाली जो बंगाल विच रहिंदा है इसका स्त्रीलिंग होवेगा बंगालन। तेली तेली जो तेल का काम करता है इसका स्त्रीलिंग होवेगा तेलन। ज्ञानी ज्ञानी जिसनों बहुत ज्ञान होवे तां इसकी स्त्रीलिंग ज्ञानन। भिखारी जो भीख मंग के गुजारा करता है इसका स्त्रीलिंग भिखारन। शिकारी जो जंगल विच शिकार खेडदा है इसका स्त्रीलिंग शिकारन। शहरी जो शहर विच रहिंदा है शहरी दा स्त्रीलिंग शहरन। Daman ma'am, now stop recording. Okay, ma'am. बेटे हुण जे किसी भी बच्चे नूं कोई भी डाउट